Good evening, ma'am, and my dear friends. मैम मेरा म्यूट Good evening, ma'am, and my dear friends. My name is Prerna Patel, and I'm here to share the extract of the book The Power of Habit by Charles Duke. Duke shares the experience with the Travis Leach, who was a 25 years old and the successful manager at the Starbucks. So now get through the story. Presentation on Starbucks and the habit of success. Travis Leach. Travis Leach ने पहली बार अपने पिता को ओवरडोज देखा जब वो 9 साल का था। वो उस समय शिफ्ट हो गया गली के अंत में एक छोटे से अपार्टमेंट में, जहां पे वो जब स्कूल से आता तो अपने घर को साफ करता और बचे हुए खाने को फ्रीज में डालता और वहां पे वो हॉट सॉस का पैकेट पाता किचन पे, जिसे देखकर वो समझ रहा था कि अभी माता पिता ने हीरोइन को टेम्पोररी के लिए बंद कर दिया। Travis felt safe whenever his fathers were on the couch and their half-lidded eyes watching cartoons. Travis' father was a gentleman who loved to cook and who was a stint in the Navy, spent his entire life within a few miles of his parents in Lodi, California. Travis के जो पिता थे वो एक सज्जन व्यक्ति थे और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने माता पिता के साथ लोडी कैलिफोर्निया में स्पेंड किया था। Travis' mother was in a prison for a heroin possession. Travis की जो माँ थी वो prison में थी for a heroin possession. On the morning of the overdose, Travis and his brothers were playing in the living room on the top of the blanket that he used for the sleeping at each night. Travis' father was getting ready for making the pancakes and he stepped into the bathroom. After some minutes, he come back and getting to open the refrigerator and bring an egg that crushed, and his father were ravishing and his face turning blue. Travis' siblings had already seen through and he know the dream.
He told to Travis that you go to the neighbor and ask to use the phone and dial 911 and say, "My name is Travis. My dad is passed out and we don't know what's happening. He is not ready." Travis know that moment that knowing his dad is unconscious, but he does not say that. At that morning, Travis' father was getting treatment, and in the afternoon, they go to the police station, and at the same day, the dinner time, he come back to home. When Travis was 16, he dropped out high school. He got 2 hours South Franco and joined a job of car wash. He was fired for insubordination. He got a job at McDonald's and Hollywood Video. When customer was rude, he was lose his control. Sometimes Travis was कभी-कभी वो रोने लगता था और कभी-कभी वो अचानक से चिल्ला पड़ता था. कभी-कभी वो बिना किसी कारण की जॉब पे नहीं आता था और कभी-कभी बिना रीजन के वो लीव ले लेता था. One day a regular customer जो कि ट्रैविस को जानते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम स्टारबक्स ज्वाइन कर लो. वो वहां पे एक अपना स्टारबक्स ओपन कर रहे थे वॉशिंगटन में, और जहाँ के वो असिस्टेंट मैनेजर थे. After a month, Travis became a barista on the morning shift. And उसके बाद जब now at 25, Travis is the manager of two Starbucks, where he oversees 40 employees and is responsible for revenue exceeding $2 million per year. उसका salary $44,000 and he has a 401k and no debt. Travis now become so good in nature. Like उसे पता था कि कैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे वर्क पे टाइम पे आना है, कैसे अपने कस्टमर्स को डील करना है. After joining the Starbucks, he know everything about himself and he developed his personality. वो अब ना तो कभी किसी कस्टमर पे चिल्लाता और ना ही रोता. एक दिन उसके एक एम्प्लॉय को एक कस्टमर से बोल देने पे ट्रैविस ने उस एम्प्लॉयज को साइड में ले गया and say, "Your apron is shit. तुम्हारी apron ही तुम्हारी ढाल है. Nothing anyone says will ever hurt you. You will always be as strong as you want to be." कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता जिससे तुम हर्ट हो जाओ. तुम हमेशा उतने ही स्ट्रॉन्ग रहोगे जितना तुम रहना चाहोगे. स्टारबक्स. ट्रैविस के अकॉर्डिंग स्टारबक्स उसके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट थिंग है जिसने ट्रैविस की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया. उसने उसे सिखाया कैसे लाइफ में फोकस होते हैं, कैसे अपने टाइम को वर्क पे करते हैं और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. Travis said that I owe everything for the Starbucks. उसने कहा मैं हर चीज कर सकता हूँ स्टारबक्स के लिए. स्टारबक्स एक ऐसा चीज सिखाता है लोगों को जिसको सिखाने में फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी अक्सर फेल हो जाते हैं. He taught him will power. मार्शल. एक रिसर्च के दौरान एक 4 इयर्स के बच्चे को एक रूम में ले जाया जाता है जहां पे उन्हें एक मार्शमैलो दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है अगर वो कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो उन्हें दूसरा मार्शमैलो दिया जाएगा. अब जब रिसर्चर्स 15 मिनट के बाद वापस आते हैं तो उनमें से 30% बच्चे ही होते हैं जो इसे इग्नोर कर पाते हैं, बाकी सारे बच्चे खा लेते हैं. और जब वो बच्चों को वो हाई स्कूल्स में ट्रैक करता है तो ये पाया जाता है कि वो सब बच्चे अच्छे होते हैं जिन्हें फ्रेंड्स को इजीली बना पाते हैं, वो अपने पीयर प्रेशर को रेजिस्ट कर पाते हैं, उन्हें हाई ग्रेड्स रहते हैं, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होते हैं, उनके अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं और उनके सैट के स्कोर 210 एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंग ज्यादा रहते हैं. Now the another experiment of ball of cookie and radish. इसमें 2 ग्रुप रहते हैं. एक ग्रुप के बच्चे को कुकीज और रेडिश और दूसरे ग्रुप के बच्चे को भी कुकीज और रेडिश दिया जाता है. पहले ग्रुप के बच्चे को कहा जाता है कि कुकीज को खाना और रेडिश को इग्नोर करना है. दूसरे ग्रुप के बच्चे को कहा जाता है कुकीज को इग्नोर करना और रेडिश को खाना है. तो जिन बच्चे को कहा जाता है कुकीज को खाना, उनके लिए टास्क बहुत इजी होता है, लाइक उन्हें रेडिश को इग्नोर करना रहता है. लेकिन जिन बच्चे को कहा जाता है कि रेडिश को खाना, उनके लिए टास्क थोड़ा टफ रहता है क्योंकि वो सामने भी कुकीज हो और वो ना खाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो
तो वो बच्चे लोग मतलब इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन फिर जब बाद में वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक पजल सॉल्व करने को दिया जाता है। वो कहा जाता है कि वो बैठ के कुछ देर के लिए सॉल्व करें, तब तक के बाद के मार्क्स बताए जाएंगे। और वो पजल इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनको देखना रहता है लेवल, और वो पजल ऐसा रहता है जो कि इम्पॉसिबल जो सॉल्व रहता है। लेकिन जो बच्चे कुकीज खाए रहते हैं वो बहुत काम फील करते हैं और वो काफी रिलैक्स रहते हैं और वो अच्छे से सॉल्व करते हैं और लाइक इजली वे में से बोलते नहीं हुआ। और जो बच्चे रेडिश खा हुए रहते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं और वो लाइक गुड़गुड़ाते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं खुद में, और वो इजिली थक जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं कुकीज खाने से। अगर आप अपने अगल बगल कुछ प्री इमेज रख लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा कुकीज को इग्नोर करने में। फॉर द स्लाइड डिटेल्स आई विल कॉल निकिता। Hello everyone. So far my friend told about the chapter and now it's my turn. In 1992, orthopedic hospital in Scotland, a lady who went to the hospital and take a 5 dozen people for an experiment. The experiment what he was to found out the how willpower will generate in the patient if she and he was in a anticipated in the significant in a nature. Then he find out the patient some like who was in under pressure on the got in a treatment of a knee and hip treatment. Then she gave her a paper with a booklet with a 13 blank paper, and it was written like my goes for the hour. It means जब उन्होंने ये पेपर दिया उसमें एक बुकलेट था और उस बुकलेट में सिंपली उस जितने भी पेशेंट थे उन्हें इसमें बस इतना लिखना था कि उनका गोल्स क्या है। जब वो एक ट्रीटमेंट के अंदर जब वो ट्रीटमेंट से बाहर आएंगे तो उस ट्रीटमेंट के बाद उनका गोल्स क्या रहेगा कि वो उस चीज को कैसे जब उनके साथ एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन आया तो उसको एंटिसिपेट कर देंगे। तो उन्होंने सब कुछ दिया और जब उन्होंने सबसे बुकलेट वापस लिया तो उन्होंने उनको दो टाइप के ग्रुप के पीपल मिले। एक ऐसा ग्रुप जिसमें उन्होंने हर एक गोल को लिखा हुआ था और एक ऐसा ग्रुप पीपल जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो जो पीपल लिखे हुए थे गोल्स के बारे में वो सारे लोग जो नहीं लिखे थे उनके कंपेयर में सेकंड एंड 2x टाइम ज्यादा इंप्रूवमेंट था उनके हेल्थ में। और जिन्होंने लिखा था उन्होंने हर एक चीज लिखा था when, how, where. Like some example, a patient wrote in a booklet like when I was going to the take my wife from the bus stand, where he was going to take his wife and where and the map of the road and the medicine when he in a pain in an anticipate pain and what type of a medicine he will give. And the lady who the lady scientist who does the experiment, he found the booklet is the booklet of two people are where they mention about all the pain, like when a person who will go to the washroom, he was in a pain when he was sitting in the washroom seat, and he will explain all the things what will be going on that anticipate pain and how to he will improve their self in there. In now phase 2, in third part, we see Starbucks. Starbucks eventually incorporate their ideas into their training program, and now they have an employee write out the plans for how to deal with a stressful situation. Starbucks सबसे पहले जब अपने employees को significant के लिए जब उन्होंने judge किया तो उन्होंने find out किया कि उनको उनके employees में एक lack में improve हो गया है जिसकी वजह से उनका customer service भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। जब Starbucks ने इसे find out करने की कोशिश किया तो उन्होंने पाया कि उनमें जो इच्छा शक्ति उनकी जो will power वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई और इस वजह से Starbucks ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक अपना एक मेथड अपनाया और उन्होंने विल पावर को जनरेट करने की कोशिश की। इसमें जिसमें कि पास में ट्रेविस के बारे में बात किया गया है, उन्होंने जिक्र किया है कि जब Starbucks में इंटर किए थे तो उनके मैनेजर ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हारे साथ ये सिचुएशन हो कि वो कोई कस्टमर तुम्हारे पास आके तुम्हारे पास चिल्ला रहा है सिर्फ इसलिए कि तुमने उन्हें एक गलत प्रोडक्ट लाके दे दिया तो तुम उस समय क्या
ट्रेविस का एक सिंपल सा आंसर था कि मैं उस समय शायद गुस्सा हो जाऊंगा और शायद मैं डर भी जाऊंगा। मैनेजर ने कहा कि यह बिल्कुल सही है और एक नेशनल थिंग है, क्योंकि जब आदमी के ऊपर बिना मतलब की बात की जाती है तो उनका आंसर कुछ ऐसा ही होता है। बट हमारा सर्विस है और स्टारबक्स का सर्विस है कि वी गिव बेस्ट कस्टमर सर्विस एंड आपको ये नहीं करना है। और इस चीज को इंप्रूव करने के लिए ट्रेविस ने बताया कि मैनेजर ने उन्हें एक बुकलेट दिया और उस बुकलेट पे उसमें लिखा हुआ था when customer is unhappy my plan to। इसमें ट्रेविस के मैनेजर ने उन्हें समझाया ये पूरी बुकलेट खाली है और वो सिर्फ उनके लिए है और उनमें वह एक्सप्लेन करेंगे कि और अपने तरीके से इमेजिन करेंगे किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन को कि जब उनके कस्टमर अनहैप्पी होंगे तो वो क्या करेंगे। और ट्रेविस ने उस पूरे पॉइंट पे अपने बारे में कि वो कब किस सिचुएशन कैसे हैंडल करेगा उसको इस जिक्र किया। स्टारबक्स मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि स्टारबक्स लैटिन नाम के एक मैटर ऑफ बेसिस प्रिंसिपल पे चलता है और लैटिन का मतलब होता है लिसन टू लर्न, acknowledge and applies, take an action, talk about it and educate yourself. Listen, where to listen? Listen to your customer and acknowledge and apply to the customer. Take an against what the problem he faces, his customer, and talk about it, matlab discuss about your organization and educate yourself. It means he improve yourself to solve the problem of your customer. Willpower became a habit. By choosing a certain behavior ahead of a time and following a plan routine when an inflection point arrives. Basically ये बस वही चीज पे added है cue, routine and reward. आप जो चूज कर रहे हैं अपने लिए behavior, आप उसके साथ फॉलो करने की प्लान और रूटीन को वो आपके लिए inflection point पे अराइव करेगा। Now in the fourth section of the chapter is Howard Schultz and the man who built the Starbucks. Howard Schultz जब 7 साल के थे तो उनके पेरेंट्स उनके फादर का एक एक्सीडेंट हो गया था जो कि उनके नी को ब्रेक डाउन कर दिया था, जिसकी वजह से इनके फादर का जो भी इनकम ऑफ सोर्स था वो पूरी तरह से घट गया। और आफ्टर रिकवरी इनके फादर ने तब भी उस तरह के इनकम सोर्स को जनरेट नहीं कर पाए जो वो अपने बच्चे को एक लग्जरी लाइफ या फिर एक सस्टेनेबल लाइफ प्रोवाइड कर सके। और जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, लाइक एक ही ग्राउंड में हर तरह के गेम खेला जाता था जो कि इतना ज्यादा पेनफुल था इन लोग के लिए कि अगर ये लोग एक बार गेम हार रहे थे तो कंटिन्यूअस कई घंटों के इंतजार के बाद उन्हें दोबारा चांसेस मिल रहा था कि वो फिर से प्ले करके कुछ कर सके। बट फिर भी जब ये कॉलेज में गए तो इन्हें फुटबॉल के क्लब में इन्हें जगह तो मिल गई, बट ड्यू टू इनका एक बार खेलते खेलते एक बार इनका जबड़ा टूट गया जिस वजह से इन्हें अपना खेल छोड़ना पड़ा बीच में। इसके बाद ये न्यूयॉर्क चले गए अपने जॉब के लिए। यहाँ इनका जॉब था, ये इन्होंने ऑनर्स किया था मीडिया से और इनका जॉब कुछ ऐसा ही था प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड। जब ये न्यूयॉर्क गए तो वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसमें हर तरह का ऑफिस अवेलेबल थे वो वहाँ जाते और हर ऑफिस के में जाके पूछते कि आपको प्रिंटिंग मीडिया की नेसेसरी है, पर किसी का भी जवाब नहीं था। हावर्ड शेड्यूल एक बार एक कॉफी प्लास्टिक कंपनी में काम करते जहां उनको एक ऑर्डर आया था, तो वो ऑर्डर एक कॉफी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का था और हावर्ड शेड्यूल वो सिर्फ वहां ऑर्गेनाइजेशन में देखने गए थे कि हाउ दे वर्क एंड हावर्ड शेड्यूल उस वर्क को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। वो वहां काम भी किए। फिर आफ्टर दो साल के बाद उन्हें पता चला कि जो कंपनी है कॉफी वाली वो अपनी कंपनी को बेचना चाहती है। इनके पास तब इतने पैसे नहीं थे कि वो इस कंपनी को खरीद सके, पर उन्होंने अपने जान पहचान से पैसा लेके उस कंपनी को खरीदा और 2 साल में ही इन्होंने 84 आउटलेट अपनी कंपनी खोल ली और ठीक 10 साल बाद इनकी कंपनी 72,000 आउटलेट फॉर द 5 कंट्री, 50,000 कंट्री इन द वर्ल्ड, 50 कंट्री इन दी वर्ल्ड आउटलेट इनकी खुल गई और काफी ज्यादा इनके बिजनेस में ग्रोथ हुआ। Now we see in a phase 2 of a 4 जब स्टारबक्स में कंपनी एक हाई लेवल पे पहुंच गई थी तो 2000 में कंपनी ओनर ने अपने
सन को प्रोवाइड कर दिया। और ठीक 2008 तक में स्टारबक्स की जो इनकम थी वो बहुत ज्यादा घट चुकी थी और कस्टमर जो थे काफी ज्यादा कंप्लेन करने लगे थे, उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। इस वजह से स्टारबक्स को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। कस्टमर उन्हें एक घटिया कॉफी के नाम के से प्रोवाइड करके हर जगह पे सेल कर रहे थे, हर जगह पे उन्हें फैला रहे थे। तब उन्होंने दोबारा से स्टारबक्स को ज्वाइन करके सीईओ की कंपनी सीईओ के पद को फिर से संभाला और उन्होंने फाइंड आउट किया कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉय में जो देखा जा रहा है वो है कि एम्प्लॉय अपने काम को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और उनका जो सीईओ जो वर्क कर रहा है उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि किस तरह से हाई और मोर आउटलेट खोला जाए, जो कि उनका फोकस बिल्कुल भी ना उनके कस्टमर और ना ही एम्प्लॉयज पे था, जिसकी वजह से लैक ऑफ विल पावर आ गया था उनके ऑर्गेनाइजेशन में। स्टारबक्स जिस समय इस सिचुएशन से गुजरा था उसी वक्त ब्रिटेन की एक रिसर्च में पता किया गया कि जहां पे लोग अपना जहां पे उन्होंने एक विल पावर चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां पे लोगों को दो ग्रुप में बांट करके कुकीज प्रोवाइड किए गए थे और एक ग्रुप को जहां पे सारी चीज इन्फॉर्म किया गया कि आपको कुकीज क्यों दिया जाता है और आपको कुकीज का क्या करना है और हम लोग ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरे ग्रुप को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा वहां बेचैन होने लगते और उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज्यादा जग गई थी, पर उनके अंदर इस बात की गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें इस तरह से बंद क्यों किया गया है। उसके बाद जब दोबारा हम लोग एंटर करते हैं तो उन लोगों को बस एक चीज बताया जाता है कि स्क्रीन पे आपको नंबर कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहे हैं और आपको जैसे दिखेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में, आपको जब 4 दिखे तो आपको प्रेस करना है बटन 4। और इस वजह से जो ग्रुप जिन्हें सब कुछ बताया गया था कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों कर रहे हैं, उस सब में देखा गया कि उनमें 90% लोग ऐसे थे जो प्रेस दी बटन 4 कर रहे थे, बट द ग्रुप जिसमें कि कुछ भी नहीं बताया गया था वो लोग कुछ भी एक भी पॉइंट बटन 4 नहीं करे। जब उनसे रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो उस चीज को देख नहीं पा रहे और वो समझ नहीं पा रहे कि उसमें ये क्यों करना है। तो इस हिसाब से इस रिसर्च के थ्रू बताया गया कि जब आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो किस लिए और क्यों कर रहे हैं, तो उनके अंदर करने की शक्ति और विल पावरनेस इंक्रीज होता है और उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें ये किस लिए करना है और उन्हें उनसे उनको क्या फायदा हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू विल पावरनेस में कैसे इंक्रीज करना है इस चीज को बताया गया। इन स्पेस 5 लाइफ बिफोर स्टारबक्स, एज वी सी जो ट्रेविस जो थे वो स्टारबक्स के आने से पहले उनके फैमिली के साथ क्या हुआ था और वो किस फैमिली के अंदर सर्कमस्टेंसेस में बीच में पले बने थे। बट इससे पहले जो उनके साथ जो कुछ घटना हुई थी वो इस फेज 5 में बताया गया। एक बार की बात है, वो अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने जस्ट अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं कैसे बच गया, और उसकी माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पापा बहुत ही ज्यादा ओवरडोज दिया करते थे और तुम्हारे होने से पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी, बट ड्यू टू सम रीजन हमको वो हटाना पड़ा और हम उस फेज में आगे बढ़ गए थे। बट फिर भी हम बहुत ज्यादा नहीं इस चीज को हटा सकते थे और सम मेडिसिन एंड प्रिस्क्रिप्शन की वजह से दोबारा फिर से जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं दोबारा अपने हेल्थ को लेकर के ऐसा नहीं कर सकती थी। पर तुम्हारे साथ पर तुम्हारे होने के बाद जो मेरी जिंदगी में सबसे खुशी का पल है ये है कि तुम उस वक्त उसने सही बता दिया ये अपने बेटे ट्रेविस ये फील कर रहे थे कि वो अगर इस तरह सर्कमस्टेंसेस में नहीं रहते तो उनका भी एक अच्छा फैमिली होता और उनकी माँ जो कि उसके लिए इतना सोचती है वो भी एक कुछ अच्छे मुकाम पे होती। ट्रेविस अपने इस पार्ट में वो ये अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनके पापा जब अंतिम सांस ले रहे थे तो अगर वो स्टारबक्स में पहले जाए रहे तो स्टारबक्स में जो उन्हें लेसन दिया कि पेशेंस को कैसे बात करना है और अपनी बात कैसे मनवाना है, तो शायद वो अपने पापा को आखिरी बार देख पाते, क्योंकि जब उन्होंने अपने पापा से मिले या हॉस्पिटल में गए तो 8:02 हो रहे थे और उन्हें पूरी नर्स ने बताया कि 8 बजे हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने का टाइम खत्म हो जाता है, इस वजह से आप अपने पापा से नहीं मिल सकते। और सिर्फ 2 मिनट की वजह से वो अपने पापा से नहीं मिलते और उनके पापा का देहांत हो जाता है। जो कि ट्रेविस इस पार्ट में इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि इफ अगर वो स्टारबक्स में पहले से आए रहते और अगर उनको उनके लाइफ में स्टारबक्स का जो लेसन जो उनके मैनेजर या उनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको मिला है वो शायद इस चीज को पेशेंट्स को अगर अप्लाई करते ना तो शायद वो अपने पापा से आगे बार मिल पाते।
Now in the conclusion portion, this chapter is based on the willpower. Willpower is the single most important keystone habit for individual success. willpower एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कीस्टोन है किसी भी हैबिट को जनरेट करने किसी के भी इंडिविजुअली सक्सेस। आप अगर अपने विल पावर को जनरेट कर रहे हैं और उसको एक सिंगल स्टेप पर सिर्फ उसके बेसिस पर अपना वर्क कर रहे हैं और आप अपना विल पावर जनरेट कर चुके हैं तो आप शायद एक इंडिविजुअली आप सक्सेस कर सकते हैं। Will power isn't just a skill; it's a muscles, and it get tired as it works harder. So there is a less power left over for the other thing. विल पावर एक सिर्फ स्किल नहीं है, एक मसल्स की तरह ट्रीट करता है जो आपके किसी भी हार्डेस्ट से हार्डेस्ट वर्क को इजी वे में और लेस में आप वो उस चीज को कम से कम में आप उसको कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट रिक्वायर विल पावर, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मोस्टली रिक्वायर करते हैं विल पावर। थैंक यू। मैं उसको बंद कर देता हूँ। But we also side. Yes, ma'am. खुद भी करती हूँ मैम, मुझे पास नहीं होता इसलिए नमाज करती हूँ। ठीक है, मेहनत तो दिखा है प्रेजेंटेशन बढ़िया था, कॉन्फिडेंस था और तीन जगह जो आप एक्सपेरिमेंट बता रहे थे प्रेस वो एक्सपेरिमेंट वैसा है। एक्सपेरिमेंट इस तरह से है कि ग्रुप को बोला जाता है उंगली पेश है, ठीक है, ग्रुप में बैठना का वर्ड है कि बहुत ही ऐसे समझने में काम बहुत प्रॉब्लम तो उसको और जो हिंदी में कर करके कोशिश करते हैं तो वो अपना सही से याद हो नहीं अच्छा था। बता दूं मैं सेल्फ में किया था कैसे दो ग्रुप डिवाइडेड था, ये बताया गया कि करना क्या, ठीक है, वो सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, को कुछ नहीं बताया गया, बस ग्रुप की पेश आया गया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया और टास्क दिया गया कि 6 के बाद अगर 4 आता है और अगर 6 के बाद 4 आता है तो स्पेस बार हिट करना है, ठीक है, 4 नहीं स्पेस बार हिट करना है, ठीक है। तो जिसके साथ अच्छे से पेश आया गया था, जो एक्सप्लेन किए थे कि एक्सपेरिमेंट का मॉडल क्या है, वो ग्रुप अच्छा परफॉर्म किए और जिसके साथ उंगली पेश आया था वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, वो स्पेस बार हिट करना भूलते रहे, ठीक है। तो यही चीज प्रूव किया गया था एक्सपेरिमेंट से कि आप अगर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं किसी चीज पे तो आगे आपको विल पावर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं, ठीक है। और क्या कंक्लूजन में सही था? और यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन था वो स्कल्ज, ठीक है, आप कुछ और प्रोनाउंस कर रहे थे, क्या प्रोनाउंस कर रहे हो याद नहीं आ रहा, लेकिन स्कल्ज का सही प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और कुछ बुक भी नहीं लगे और मैं क्लैरिटी का जो ई है, ई का होता है एक्सप्लेन टू कस्टमर दैट व्हाई दैट प्रॉब्लम हैपेंड, क्लैरिटी मींस आप रिलेशन के लिए वही था और जब गूगल पे सर्च किया ना तो फिर वही था, तो जब वो फोटो आया तो फिर इसलिए उसी हिसाब से बोल दिया आपको याद था वो पहुंचे है इसलिए चेंज आपका
वो जॉब कैसे छोड़ा वो lost his job driving diaper truck. वहीं पे चलो और एक मिनट को याद नहीं आ रहा क्या इतना चीज है बाकी दो प्रॉब्लम इसमें कहीं लागू नहीं क्या पढ़े हैं और सारी चीजें इंक्लूड किए हैं जो प्रॉब्लम है वो पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से लेकिन मैंने देखा कॉन्फिडेंस था और जब आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन हम दोनों जैसे है दोनों का कॉन्फिडेंस है प्रोनाउंसिएशन स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल है तो